الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے کل کچھ جو باتیں روزہ چھوڑنے کے عذروں کے تعلق سے بیان ہو رہی تھی، ان کا باقی جو حصہ ہے آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں زیادہ تر آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں، باقی اگر کچھ اس کے مسائل رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد میں ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے 20ویں رمضان سے جو شروع ہوتا ہے یعنی اعتکاف کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ بہت جلد 1-2 روز میں اس کا جو ہے بیان اور ٹاپک شروع کیا جائے۔ آج کے لیے جو مسائل ہیں وہ سماعت کریں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ انسان کو اگر کوئی بھوک اور پیاس سے پکا اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں بھوکا پیاسا رہوں گا یعنی حالت روزہ میں رہوں گا تو یا تو یہ کہ دماغی خرابی پیدا ہو جائے گی، پاگل ہونے کی اس کی استھتی ہو جائے گی، یا یہ کہ اگر روزہ رکھا تو پھر یہ ہے کہ پکا یقین ہے کہ شاید کہ روزہ پورا ہونے تک بندہ جو ہے زندہ نہ رہ سکے۔ تو یہ آثار بیان ہوئے ہیں، سماعت کریں۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف صحیح یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، جب اللہ تعالیٰ اس کو توانائی تندرستی دے، بعد میں ہم روزوں کی قضا کر لیں۔ روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے اور صبر کیا تو اجر ملے گا۔ فرما رہے ہیں کہ کسی بندے کو زبردستی روزہ توڑنے پہ مجبور کیا گیا اور اس کے عذر پہلے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ایسی دھمکی یا اس طریقے سے بندے کو فورس اور ٹریٹ کیا گیا کہ اسے یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اور اسے یقین ہے کہ یہ میرے اوپر سختی در سختی کرتا ہی چلا جائے گا، تو فرمایا کہ آپشن ہے، اگر صبر کرے اسی حالت میں، وہ ظالم جو اس کے اوپر سختی کر رہا ہے اس کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے اسی حالت میں اگر بندہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن شریعت کی طرف سے چھوٹ بھی ہے، اب اگر اس کے اوپر اس قدر سختی ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، پکڑ اس کی نہیں ہوگی انشاءاللہ قیامت کے دن۔ سماعت کرے آگے۔ سانپ نے کاٹا اور جان کا پکا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دے۔ کوئی دوا ایسی ہے جو کھانی یا پینی پڑے گی اور سانپ کا زہر اس کے بغیر نہیں جائے گا تو حکم ہے کہ روزہ توڑ دیا جائے۔ جن لوگوں نے ان عذروں کی وجہ سے روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، یعنی کہ قضا تو ہر حال میں کرنی ہی پڑے گی۔ میں آپ کے سامنے بار بار یہ بات دوہرا چکا ہوں، روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ ٹوٹا ہوا معاف ہے یا چھوڑا ہوا روزہ ہمیشہ کے لیے معاف ہے، نہیں۔ روزہ ٹوٹا ہے ان عذروں کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری ہے جس کو شریعت عذر اور مجبوری مانتی ہے تو اس ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا کر لے، یا وہ روزہ جو چھوڑا گیا اس کی بھی بعد میں قضا کر لے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 1 2 3 4 5 جتنے بھی اس کے روزے چھوٹے ہیں ان میں پھر یہ ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب ضروری نہیں، چاہے مدے سے آج 1 دن کا قضا رکھ لیا، 1 دن کا گیپ دے دیا، پھر دوسرے دن قضا کر لیا، پھر 3 دن کا گیپ دے دیا، پھر آگے جا کے قضا کر لے، یعنی کہ ترتیب وار لگاتار کنٹینیو بلا گیپ کے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو گیپ دے کر کے رکھ سکتا ہے اور چاہے تو اس کی مرضی جیسے چاہے رکھ سکتا ہے، ضروری نہیں ترتیب۔ لہٰذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھ لیے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا کر لے۔ یعنی بہتر ہے کہ پچھلے رمضان کے جو روزے چھوٹے تھے یا اللہ نہ کرے اس رمضان کے کچھ روزے چھوٹ جائیں تو آگے آئندہ آنے والے سال کے رمضان سے پہلے 20 سال کا جو پورا گیپ ہے 11 مہینے کا، اس میں جلد سے جلد جتنا ہو سکے رکھ سکے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا، اور اگر اسی حال میں وہ روزوں کی قضا بھی اپنے سر پہ چلا گیا تو پھر آخرت میں اس سے اس چیز کی پوچھ تاچھ اور بعض کوشش کی جائے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جس پر اگلے رمضان کی قضا روزے باقی ہوں اور روزے نہ رکھے تو اس کے اس رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس سے سمجھ جانا چاہیے بندے کو کہ میں نے جس چیز کو بڑا ہلکے میں لیا ہے کہ سب کوئی نہیں، جو چھوٹ گئے سو چھوٹ گئے، تو اب کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے، لیکن اب اس کا مطلب نہیں کہ پھر وہ رمضان کے روزے رکھے ہی مت، قبول تو جب بھی نہیں ہونے مت رکھے، نہیں، بلکہ یہ اس کو ایک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسے خبردار کیا گیا، الرٹ کیا گیا ہے، اگر تم نے سستی اور غفلت میں یوں ہی معاملات کو برتتا رہا تو یہ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں اب مجبوری ہو گئی ہے، یہ آ گیا رمضان تو اس کے روزے رکھ، فوراً اس کے بعد جیسے موقع ملے ترنت پچھلے سال کے روزوں کی قضا رکھنی چاہے۔
फिर इंशाअल्लाह ताला रब की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। और अगर रोजे ना रखे और दूसरा रमजान आ गया तो अब पहले इस रमजान के रोजे रख ले। ये मत सोचे कि साहब इसके कबूल नहीं होंगे तो मैं क्या करूं वक्त के, ये नहीं मतलब। कजा ना रखे, बल्कि अगर गैर मरीज और मुसाफिर ने कजा की नियत की तो जब भी कजा नहीं बल्कि इसी रमजान के रोजे अदा होंगे। कोई बंदा मरीज नहीं है, तंदुरुस्त है, मुसाफिर नहीं है, फिर वो कहे कि नहीं मैं तो इस रमजान में पिछले रोजों की कजा रोजे रखूंगा, तो फरमाया गया है कि उसके पिछले रोजों की कजा नहीं, इसी रमजान के रोजे अदा माने जाएंगे। उसकी नियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मसला पीछे भी गुजर चुका है। हाँ, मरीज है और मुसाफिर है, वो क्योंकि शरीयत ने उसको छूट दी है इन चालू रमजान के रोजों को छोड़ने की, तो वो जिस रोजे की नियत से जो रोजा रखेगा वो उसका वही अदा माना जाएगा। लेकिन मरीज भी नहीं है, सफर में भी नहीं है, तो अब ऐसा बंदा उसकी नियत को कोई एतबार नहीं होगा, रमजान के ये अदा रोजे ही उसके रोजे माने जाएंगे। आगे समाप्त करें। खुद उस मुसाफिर को और उसके साथ वाले को रोजा रखने में अगर नुकसान ना पहुंचे तो रोजा रखना सफर में बेहतर है, वरना ना रखना बेहतर है। दो चार साथी एक साथ सफर कर रहे हैं, शरीयत ने छूट दिया, आप चाहे तो रखें चाहे तो मत रखें, लेकिन अब अगर यह है कि उसके खुद को या उसके यार दोस्तों को कोई नुकसान होगा इसके रोजे रखने की वजह से, यानी कोई ऐसा काम पड़ सकता है कि जिसकी वजह से रोजे की वजह से वो काम नहीं किया जा सकता, या भरपूर ऐसी इमदाद और उनकी मदद और हेल्प नहीं की जा सकती, तो हुक्म दिया गया है कि रोजा छोड़ दिया जाए। और अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कोई दिक्कत और कोई आफत सफर में पेश आने वाली नहीं है, तो बेहतर है कि रोजा रख लिया जाए, इसलिए कि जो चीज एक बार निकल जाती है फिर उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा अदा करना, इसलिए बेहतर है रख लिए जाए। मसला, अगर ये लोग अपने इसी उज्र में मर गए, इतना मौका ना मिला था कि रोजे कजा रखते, तो इन पर यह वाजिब नहीं कि फिदिया की वसीयत कर जाएं। जिसके ऊपर कुछ रमजान के रोजे कजा बाकी थे, अब उसको इतनी मोहलत नहीं मिली रमजान गुजरने के बाद में कि अपने रोजों की कजा कर सकता था, यानी कि उसका इंतकाल रमजान के कुछ ही दिनों बाद हो गया, या उसको ऐसी कोई बीमारी कोई मजबूरी लग गई कि जिसकी वजह से वो रोजों की कजा नहीं रख सकता था, और फिर उस बीमारी के ही अंदर उसका इंतकाल हो गया, तो यहां फरमाया गया है कि इस गुजर जाने वाले बंदे पर अपने रोजों के फिदिया की वसीयत करना जरूरी नहीं है। आगे मसला आ रहा है, एक रोजा जिस बंदे का छूट गया हो हालत मजबूरी में, हालत उज्र में, तो बेहतर है कि वह वक्त आखिर अपने उन रोजों के फिदिया की वसीयत कर जाए। एक रोजे का फिदिया मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं, बता चुका हूं कि वो है सदका फित्र के बराबर। एक रोजे का फिदिया सदका फित्र के बराबर किसी मिस्कीन को दिया जाए, तो गुजर जाने वाली की तरफ से रब ने ये उम्मीद और भरोसा दिलाया कि उसकी तरफ से इन रोजों की कजा के तौर पर इसको कबूल कर लिया जाएगा। तो ये तो जब है कि जब उसको मौका नहीं मिला। हाँ, रमजान के बाद में अच्छा खासा उसके लिए टाइम मिला था, गैप मिला था, फिर भी अगर वो रोजे नहीं रखा और फिर इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो अब कहते हैं कि वक्त आखिर अपनी मौत के वक्त अपने वरासा के लिए अपने रोजों के फिदिया की वसीयत कर जाना वाजिब है, जरूरी है। अगर वो आखिरी वक्त में वसीयत नहीं करके गया तो नहीं, अपने बेटों से के बेटों, अपनी औलाद से कि मेरी औलाद, मेरे ऊपर इतने इतने फला फला साल के रोजे कजा रह गए थे, उनका अदा करना मेरे ऊपर जिम्मे था, मैं नहीं कर सका, तो मेरी तरफ से मेरे माल में से उन रोजों का फिदिया अदा कर देना। ये बात बोलना अपनी औलाद, अपने वरासा के लिए उसके ऊपर वाजिब है। तब जब उसको मौका मिला था फिर जानबूझ के उसने अदा नहीं किए थे। ये दूसरी शक्ल बनती है। पहली वाली शक्ल वो कि उसके लिए मौका ही नहीं मिला था रमजान के बाद में, तो अब वसीयत करना वाजिब नहीं है। समाप्त करें। अगर ये लोग इसी अपने उज्र में मर गए, इतना मौका नहीं मिला था कि कजा रखते, तो उन पर यह वाजिब नहीं कि फिदिया की वसीयत कर जाएं। फिर भी वसीयत की तो तिहाई माल में जारी होगी। टोटल माल जितना भी छोड़ा है उसको काउंट किया जाएगा, उसका जो तिहाई हिस्सा जो होगा उसमें इसके रोजों के फिदिये की रकम को जो है अदा किया जाएगा, सिर्फ तिहाई माल में। फिर बाकी अगर फिर भी अगर कुछ रकम बचती है और रोजे रह गए जिनकी अभी भी फिदिया की रकम बाकी है, तो उसके वारिसों को इख्तियार ऑप्शन है, शरीयत ने उनके इच्छा अनुसार छोड़ा है कि आप चाहें तो अपने गुजर जाने वाले की तरफ से बाकी रकम अदा करें, नहीं करेंगे तो कोई उनकी तरफ से पकड़ नहीं की जाएगी। और अगर इतना मौका मिला कि कजा रोजा रख लेता मगर नहीं रखे, तो अब वसीयत कर जाना वाजिब है। और अमदन अगर नहीं रखे, जानबूझ करके नहीं रखे हो, तो बदरजाए औला वसीयत करना वाजिब है। और वसीयत ना की बल्कि वली ने अपनी तरफ से दे दिया तो भी जायज है, मगर वली पर अब देना वाजिब नहीं था। गुजर जाने वाले ने वसीयत नहीं की थी, लेकिन उसके वली ने, वरासा ने खुद
अपनी तरफ से कि भाई हमारे वालिद साहब पर या हमारे फला या रिश्तेदार पर इतने इतने रोजे हमारी जिंदगी में हमने देखा था कि कज़ा हो गए थे, तो उन्होंने उसके बगैर कहे ही उसके तरफ से फिदिया अदा कर दिया जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा, ये भी जायज है, लेकिन उन पर अब देना वाजिब नहीं है। और जब वो वसीयत करके चला जाता तो अब इसके वरासा पर उसके माल में से तिहाई हिस्से में से उसके रोजों का फिदिया अदा करना वाजिब हो जाता, जरूरी हो जाता। ये मसला है, आगे समाप्त करें। हर रोजे का फिदिया सदका फित्र के बराबर है और तिहाई माल में वसीयत उस वक्त जारी होगी जब उस मय्यत के वारिस भी हो, और अगर वारिस नहीं हो और सारे माल से फिदिया अदा होता हो तो सब माल फिदिया में सरफ कर देना लाजिम है। दो ऑप्शन बताए हैं। गुजर जाने वाले ने वसीयत की थी कि मेरे माल में से मेरे रोजों का फिदिया अदा कर देना। अब देखा जाएगा कि गुजर जाने वाले के बाद में वारिस इसके माल के हकदार बचते हैं या नहीं। अगर उसके माल के वारिस और हकदार हैं तो उनको देने के उस माल में का टोटल हिस्सा जो है क्या हिस्सा निकाल लिया जाएगा, उसमें से उसकी जो वसीयत है उसको लागू किया जाएगा, उसको अदा किया जाएगा। अब अगर वारिस है तो क्या हिस्से में से उसकी वसीयत को लागू किया जाएगा, लेकिन कोई वारिस ही नहीं है बाद में पीछे उसके माल का, उसके जायदाद का मालिक बनने वाला कोई नहीं है, तो फरमाया गया है कि टोटल जितना माल है अगर उसके रोजों का फिदिया इतना बन रहा है कि इसके टोटल माल से उसको चुकता किया जा सकेगा तो पूरा माल जो है उसके फिदिया के तौर पे ही उसकी रकम में अदा कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद में कोई है नहीं जो उसका वारिस बने, तो अब ये टोटल माल उसके रोजों के फिदिया के तौर पे अदा कर दिया जाएगा अगर इतना फिदिया बनता होगा तो। लेकिन अगर इतना फिदिया नहीं बन रहा बल्कि नॉर्मल रकम बन रही है तो फिर उस नॉर्मल रकम को चुकाने के बाद में बाकी माल का जो है फिर अलग अहकाम उसके ऊपर जारी होंगे। समाप्त करें। हर रोजा का फिदिया सदका फित्र के बराबर है और तिहाई माल में वसीयत उसी वक्त जारी होगी जब उस मय्यत के वारिस भी हो, और अगर वारिस ना हो तो सारे माल से फिदिया अदा होता हो तो सबको फिदिया में खर्च कर देना लाजिम है। यूं ही अगर वारिस सिर्फ शौहर या जोजा है तो तिहाई निकालने के बाद उनका हक दिया जाए, इसके बाद जो कुछ बचे अगर फिदिया में सरफ हो सकता हो तो सरफ कर दिया जाए। ये दूसरी सूरत बयान फरमाई है। अगर शौहर का इंतकाल हुआ है, बीवी माल के हकदार जो उसका हिस्सा है वो बन रही है, फिर बीवी का हक निकालने के बाद में शौहर के रोजों के फिदिये की रकम अदा करने के लिए जो माल बाकी जो बचा है अगर उस टोटल माल में से उसके रोजों का फिदिया अदा होता है तो टोटल खर्च कर दिया जाएगा। बीवी का हक देने के बाद में उसका हक नहीं मारा जाएगा, उसको पहले उसका हक दिया जाएगा जितना शरीयत ने फिक्स उसका मिरास में किया है, वो देने के बाद में जो माल बच रहा है उसको उसके रोजों के फिदिया की रकम में खर्च किया जाएगा अगर टोटल इतना बनता होगा तो। या ये इसका उल्टा ले लें, बीवी का इंतकाल हुआ है, शौहर उसके माल का जो हकदार बनता है, उस शौहर का हक देने के बाद में बीवी की मीरास में से जो बाकी जो माल बच रहा है तो बीवी के रोजों का जो फिदिया है उसकी रकम के तौर पर इसकी बाकी जो माल का रकम है उसको खर्च कर दिया जाएगा। आगे समाप्त करें। वसीयत करना सिर्फ इतने ही रोजों के हक में वाजिब है जिन पर वो कादिर हुआ था। मिसाल के तौर पर 10 रोजे कज़ा हुए थे और उज़्र जाने के बाद 5 पर कादिर हुआ था कि इंतकाल हो गया तो अब 5 ही की वसीयत वाजिब है। ये एक मसला समाप्त करें। बंदे के ऊपर 10 रोजे कज़ा थे, अब कज़ा होने का उज़्र रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, लेकिन अल्लाह के करम से ये हुआ कि वो उज़्र और मजबूरी खत्म हो गई, लेकिन खत्म सिर्फ इतने टाइम के लिए हो सकी थी कि जितने दिनों में 10 रोजे कज़ा थे कि सिर्फ 5 रोजों की कज़ा कर सकता था। 5 रोजों के बाद में कोई मजबूरी लग गई या ये कि इंतकाल हो गया तो अब ये जो 5 रोजों को ये कज़ा कर सकता था, पॉसिबल इसके लिए हुआ था, मुमकिन जो हुआ था 5 रोजों की कज़ा करना, लेकिन फिर ही इसको मौका बाद में नहीं मिला तो अब सिर्फ 5 रोजों की जो कज़ा कर सकता था बस इन्हीं रोजों के इसके लिए ऊपर वसीयत करना वाजिब है। बाकी 5 रोजे जिनकी कज़ा करने के लिए इसके लिए टाइम ही नहीं मिला था, इसको मौका ही नहीं मिला था, इसको कुदरत ही नहीं मिली थी, तो अब वो 5 रोजों की कज़ा इसके ऊपर से माफ कर दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसकी भी इससे पकड़ नहीं की जाएगी, इसलिए कि बंदे को कुदरत की तरफ से मौका ही नहीं मिला था, सिर्फ 5 का मिला था, उनकी 5 की वसीयत करना वाजिब है। एक शख्स की तरफ से दूसरा शख्स रोजा नहीं रख सकता, समझ गए? ये फर्ज इबादत है जिसको सिर्फ खुद बंदे के ऊपर लाजिम है, जैसे नमाज खुद अपनी ही पढ़नी पड़ेगी तो ऐसे ही रोजा भी अपना अपना ही रखना पड़ेगा, कोई दूसरे की तरफ से कहकर के। जैसे हज तो एक ऐसी इबादत है कि कोई हज बदल करवा सकता है, इसी तरीके से बहुत सारे नवाफिल काम है जिनको बंदा दूसरे के जरिए से अदा कर सकता है, लेकिन नमाज हो गए, रोजे हो गए और इसके अलावा और बहुत सारी फर्ज जो इबादत हैं उनको बंदे को खुद ही अदा करना होगा, दूसरे की तरफ से उसमें नयाबत जायज नहीं है।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر کے عمل میں لانے کے توفیق عطا فرمائے۔